गाइस कैसे हो? गाइस एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आया है कि ना वीकेंड पे काम के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। तो बेसिकली क्या है कि देखो, मैं इवन आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू वर्क ऑन द वीकेंड, इवन आई डोंट वांट माई सेल्फ वर्क ऑन द वीकेंड. I'm very busy on the weekend because of kids and activities and all that stuff. So for me, it's like a, but at the same time, I expect at least, let's say you go over your tasks. Let's say there are like 35 tasks. You go over each and every one and take the next step in that. Just do a follow up with the people. Just do a follow up with the people because you're not going to do everything them yourself anyway. So just follow up with the people. Send the messages to VPH and send the messages to the BDMs, and then ensure that they're doing what they're doing. I had a 10-minute meeting with Natasha ma'am this weekend. I had followed up with at least 6 different PMs level 2 leads because it was written in my task list. I was able to do that easily. I didn't have to think too much. I had to apply very little mind and do it myself. I interviewed one medical billing guy. That's 20 minutes. That I'm working as a BDM. In level 2 leads, I'm working as a BDM actually. So that's me as a BDM. So whoever is doing as a BDM, he has to do whatever that is. So if you're having some tasks assigned to you because there is no BDM for that, because nobody's doing that, so you have to do yourself. Remember? So whatever time. Remember in the business owner thing, if there are 3 people in the total team, you and 2 SUSM people, whatever is remaining, if those 2 people are not able to do, you have to do yourself. Remember? So from that aspect, I had to do BDM tasks myself. Level 2 lead interviews, basic interviews, level 2 lead generation as well. Some people are not able to do that easily. So the point is, I have spent maybe just total 1.5, 2 hours over the weekend, but my responsibility was huge, and that's one thing I want everybody who is working as division CEO, RMO, or this thing, or BO, or even as VPH, or even as BDM to understand. Our commitment to weekend is we wanna live a happy life, free life. But if there is a meeting between me and you, if there is a meeting between you and VPH or BDM or anybody, then please, just take the time out and make the things, and especially not just a meeting, all the tasks that are assigned to you, take the next step in them, make them, go to the next level, next step, do the follow with people. That's it. That's what I'm asking. So, I'm recently this has happened. Someone is not doing that, so I'm not happy with that. But I'm just saying, you do that. Thank you. जी गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया गाइस. जैसे जैसे टाइम बीत रहे ना, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर और भी ज़्यादा बिलीव करने लग गया हूँ कि जो मेरा और हम जितने सारे हमारे पास BDM है, मार्था मैम, क्या मार्था, प्रीति, टेरी, पीटर सर, ब्रायन सर और सारी टीम, वो थॉमस सर वगैरह सारे लोग, राइट, ये सारी जो टीम है हमारी, ये ठीक है ना, जितने सारे BDMs भी हैं, सारे VPH भी हैं और सारे RMOs भी, सब लोग, ठीक है ना, एवरीबडी. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे मन में आ रही है कि सारे के सारे बंदे में ख़ास बात ये कि मेरा और इनमें ट्रस्ट है. कहने मतलब ये कि करने वाले, यानी कि काम करने वाले, यानी कि हमें बड़े आराम से मिल सकते हैं. कोई ऐसी बात नहीं मार्केट में. जैसे मैं काम कर रहा हूँ जैसे, तो या किसी के साथ भी, जैसे मान लो एंडी सर के साथ, तो मुझे पता है एंडी सर रिक्रूट भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छा BDM. ऐसे BDMs भी हैं जिनकी पहले से पूरी नॉलेज है, हम सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है. मैंने भी 3-4 साल ही प्रॉपरली काम किया हुआ है एज ए BDM, ठीक है ना. तो और रिसेंट मार्केट एक्सपीरियंस भी है मेरा, तो मेरे से भी बेटर BDM मिल जाएंगे. तो काम करने वाले जो BDMs हैं वो बड़े आराम से मिलते हैं. तो फिर ब्रायन सर, अपना सारे सर, जो सारे बंदे हैं, इन सब में ख़ास बात क्या है, ब्रायन सर कह लो, मैं अलग अलग टीम्स के नाम लेता हूँ, पीटर सर, टेरी सर, मार्था, प्रीति, इन सब में ख़ास बात क्या है, कम से कम ये है कि इन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. ये ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं आपको मेरे साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ काम करते हो, आपको मेरे साथ पता नहीं कितने हमारे सारे तौर तरीकों का पता है. तो आप लोगों का मेरे में ट्रस्ट होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पता होना चाहिए कि ये बंदे मेरे साथ बिजनेस, कल को मेरे पास कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया आता है तो मैं कंप्लीट ट्रस्ट करके इनको, जैसे इयन सर हैं, हर चीज़ की मतलब एक्सेस देने में मैं बिलीव करता हूँ, तो वो ऐसे मैं दे सकता हूँ इस बंदे को. ये है ट्रस्ट का यहाँ पे मतलब. ट्रस्ट तरह तरह की चीज़ों का होता है. यहाँ पे इस ट्रस्ट का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैं इस पूरे बिजनेस मॉडल को खड़ा कर सकता हूँ. बीट थॉमस सर, बीट रॉकी सर, बीट मिलर सर, बीट ब्रायन सर, बीट टेरी सर, पीटर सर, मार्था मैम, प्रीति मैम, गैब्रियल सर, एरन सर, सारे, मार्कस, जेरी सर. आइडिया यही है कि मेरे को पता है कि मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि मेरे को तो मेनली इन सबसे ट्रस्ट चाहिए, ठीक है ना. इन द लॉन्ग तो मुझे ट्रस्ट चाहिए, क्योंकि मेरी विजन यही है कि आप आगे जाके मेरे किसी बिजनेस मॉडल को, किसी बिजनेस यूनिट को संभालें, कंप्लीट मुझे बिजनेस यूनिट को संभालें, राइट. तो ट्रस्ट हैज़ बिकम नंबर 1 थिंग फॉर मी.
अमंग ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अगर हमारे बीच में ट्रस्ट ना नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है राइट एट दिस पॉइंट इटसेल्फ, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम यही सोच के करते हैं काम कि यार ये ट्रस्ट हमारा इनके साथ है। आप लोगों में सबसे अच्छी चीज़ आप सिंसियर हो, आप लोगों की सारे जो ऑलरेडी आप मेरे साथ हो सब सिंसियर हैं। मैंने कोई भी बंदा इनसिंसियर जो था ना वो नहीं रखा। सिंसियरिटी का मतलब ये है इस वक्त यही है कि जो काम आपको दिया गया आप कर रहे हैं। अगर मैं आपको नया काम देता हूँ दिल लगा के करते हैं, ये नहीं है कि आप फिर उसको नहीं करते, वो सब चीज़ें नहीं हैं, यू सी। तो ठीक है ना, वो चीज़ों के आपने टेस्ट लिए बड़ी बारी 4-5 महीने पहले बहुत सारे टेस्ट लिए थे आपके सामने, सारे बंदे जो इन लोग इस टेस्ट को फेल करते थे उनको नहीं रखा। तो सिंसियरिटी आप सब में है, नॉलेज आप सब में है, एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आप सब में है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहूँगा आप लोगों से वो भी ले लूँगा, आप लोग कर लेते हैं एज ए BDM, आप बड़े आराम से कर लेते हैं। तो यू गाइज आर ऑल ग्रेट, सब अच्छे बंदे हो, सब मेरे काम के बंदे हो, लेकिन एक ट्रस्ट मेरे दिमाग में आने लग गया कि ट्रस्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैं उसकी इंपॉर्टेंस रखना चाहता था कि ट्रस्ट राइट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव टू अर्न स्लोली एंड स्लोली, ऑर्गेनिकली क्रिएट होता है। मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। कई लोगों ने जब हायर हुए तो कहीं उन्होंने मेरे को झूठ से बोलने पड़ जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ शुरू से ही है। अपना मेरे सबसे पहले तो पीयूष में क्षितिज में से क्षितिज सर जो थे, क्रिस सर जिनको हम बोलते थे, उन्होंने भी एक झूठ बोला था शुरू के दिनों में। बाद में उन्होंने पीयूष सर के से कहलवा दिया था कि ये कमी है सर, ये मैंने गलती की थी। आफ्टर 1 ईयर जब उनका ट्रस्ट बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से एंडी सर हैं मेरे साथ, शुरू में जब आए थे मैं बताऊंगा उन्होंने कुछ छोटी सी चीज़ उन्होंने डिफरेंट सी की थी देन एक्सपेक्टेड। आफ्टर 6 मंथ्स वो खुल गए, उन्होंने मुझे क्लियर अपने आप ही बता दिया सर वो सॉरी बस वो मैं था, बट दैट्स ओके, चलो जी डन हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद भी आपको पता है एंडी सर से मेरा प्यार बन रहा है। मैं जो क्षिति सर का एपिसोड बता रहा हूँ 2012 का बता रहा हूँ, 2012 मई जून आसपास का बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ 2019 तक मेरे साथ थे। 2012 मई जून के बाद उन्होंने जो कन्फेशन किया अराउंड 2013 जनवरी फरवरी में किया होगा, यू सी। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ट्रस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जितना ये पहले नीचे गिरता है फिर उतना ही ऊपर भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये टेंशन मत लो कि अगर आपको ये लगे कि यार मैंने जो काम किया तो यार मतलब कोई ना कोई सामने आ जाएगा, बट इफ़ यू हैव एवर डन एनीथिंग रॉन्ग, कोई आपने ऐसे चीज़ की है जो मतलब की, तो मैं चाहता हूँ आप उसको सामने रखें, इसी में हमारी भलाई होती है। ये मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है कि ट्रस्ट इज़ द नंबर 1 थिंग फॉर मी। एज आई सेड एज यू एज ए BDM इज़ ग्रेट एसेट टू मी राइट नाउ, बट मैं फ्यूचर के हिसाब से ही सोच के चल रहा हूँ ये सारे बंदे मेरे लिए आगे जाके मेरी बिजनेस यूनिट संभालेंगे, क्योंकि BDM जो मेरा अच्छा बिजनेस यूनिट संभालेगा ना, जिसको बिजनेस की नॉलेज है, वो BDM भी ढूंढ के ले आएंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप ले आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप सब में कैपेबिलिटी आप सब लेकर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेथड है एक लेवल 2 लीड जनरेशन का, अगर वो फॉलो कर लो पूरा प्रोसेस तो यू कैन बेसिकली गेट द राइट कैंडिडेट फॉर BDM। वो मेरे से आपसे सबसे अच्छा काम भी कर लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ी सैलरी ज़्यादा ले लेगा वो भी दे देंगे, वो भी आपको पता रहेगा कैसे देनी है, कैसे वॉच करना है, सब कुछ पता होगा आपको, राइट। तो फिर यहाँ पे अगर आपसे बढ़िया वर्कर हैं, मेरे से बढ़िया मतलब राइट मेरे से भी बढ़िया बंदे हैं जो काम करने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली आवर वैल्यू एज BDM इज़ लेस, आवर वैल्यू एज मैनेजर, एज माई ट्रस्टेड पार्टनर इन पाकिस्तान इज़ मोर, राइट। अगर मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं कभी आपको उस लेवल तक लेके नहीं जा पाऊँगा, राइट। तो बस एक मौका था, महंगा चलो मेरे दिमाग में बैठे बैठे बात आई, मैं आप सब तक ये बात रखूँ कि इफ़ यू थिंक यू हैव एवर डन एनीथिंग विच बेसिकली मीन्स रिडक्शन ऑफ ट्रस्ट, यू शुड डेफिनेटली लेट मी नो नाउ। अच्छा, अगर मान लो आपने ट्रस्ट मान लो 5-6 महीने पहले ब्रेक किया भी था, मान लो 7-8 महीने पहले कुछ भी किया था, अब आपके सामने हमने फिर भी आपके साथ काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है, बट क्लीन आ जाना, सामने आ जाना इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा, हर एक को ये कहता हूँ कि हमेशा सामने आओ, ठीक है ना। सारी चीज़ों में मतलब कि हमारे साथ वो करो, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाओ, तभी मैंने लिखा ट्रस्ट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप कभी ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदे के लिए, जिस बंदे ने कभी कोई गलत किया है वो 6-7 महीने बाद डेफिनेटली सामने ज़रूर आए, ये आगे के लिए भी हमेशा के लिए पॉलिसी रहेगी, ठीक है ना। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। थैंक यू गाइस। Hello guys. So one of the problems I faced with some of the more time BDMs, about 2 years, 3 years back, is when I ask them to come to a meeting, they don't come to a meeting immediately. They take we have a 3-minute SLA, and if my new RMO is not even coming in within 3 minutes into the meeting, then that's not good either. So he has to make sure his laptop, his everything is working properly. 7 8 there are 7 8 things which have to be open at all times: Slack, Notion, WhatsApp, this, that, everything. And he has to be watching proper channels,
He has to be watching proper reminders and notifications, and proper Notion notifications, and proper a WhatsApp channel of especially the G team and their own channel. They should be watching this. They should be pinning those two, three channels at the top. There are three channels which can be put at the top, so they should be pinning it. They should be coming out with ways to get the notification faster. And within 3 minutes, they are supposed to join the meeting when they get the meeting notification. About 2 years back, we started this thing, and we started this campaign that if a person is not able to come within 3 minutes, we were letting them go. If I'm facing the same issue with the senior most people, then how is that good? Just because they are new, they don't know all these things, they haven't gone through this drill of 3 years back, 2 years back, so that means they are getting away with this. So this is not fine. So this is one big thing. I'm going to give you a set of other things, issues that I faced, and and to me that is not acceptable. It is not acceptable if the kids are facing this issue. If the RMOs and BDMs and sorry RMOs and business owner or division CEOs are facing this issue. Other things are they should be coming within 3 minutes, and their voice should be clear, their mic should be clear, their laptop should be clear, their inverter should be there, their light should be there. They should be having professionalism to make sure these things are happening correctly. If these things are not happening correctly, then that's an issue. That's not a good thing. We face these issues with BDMs, and that's the reason. Second thing is they should be watching their tasks in the in Notion, especially related to their project, and then make sure that they are acting on it. They are on top of each and every task. If they are not doing that, then how is it good? So this is another thing. If they tell a certain time, between that they have to make sure they have to put an extra effort to make sure they are available during that time. This has happened with me. Someone said that okay, I'll be available from 8 to 11, and then when I called at 10:55, then they were not available. And then they said that many times I work after 11 also. Hey, we didn't like this. We used to say this thing as okay, you read the whole book, you did the whole thing, but in the exam, whenever I'm asking you to come, you are not able to come on time. And when I am making a call at 10:55, that is well within your time, then you are not doing it. So these things are not acceptable from RMO or division CEO or BO. They should be taking proper notes. I suggest taking notes in OneNote, because you can organize and reorganize quick notes. And then you should be creating SOPs in Notion. You should be writing, you should be it's very important that you take notes in some proper thing. Many people use Notepad, many people use physical pad. I suggest using OneNote, and they should be taking OneNote whenever they go through something. Whenever they find something in a great SOP, they should write it. Whenever their mentor, their trainer is teaching them something, they should write it. Whenever their manager is teaching them something, when they should write it. Whenever they are being given tasks, and then they should be writing it, and then they should be able to speak the whole task again. Okay, if a junior BDM is doing the same thing, as the BDM is doing the same thing, and then VPH is doing the vertical program head is doing the same thing, then what is division CEO? If division C is also doing the same mistakes, then how is it good? So this is another thing that I want every division CEO or RMO or BO. Basically, these three are the same thing. They have to watch out for these things. In addition to that, vertical program head and BDM, they should also try to work on these things. If they are doing these things, then how? I've started seeing that this was a very important. There was a guy, his name was Harry. So Harry sir had a very interesting issue. He used to say, I work 16 hours a day. I used to work but whatever I gave him 16 tasks, out of those tasks, he didn't do any task, but he used to work 16 hours a day. So how is it even right? We are Harry sir used to work at 35,000 PKR per month. Then how is it even right that we are asking now? We are expecting from division CEO or business owner or revenue model owner to ensure that they basically don't do these mistakes. They when they come and claim that they're working so hard, they're doing so much, but then my works that I'm giving them are not getting done, then that is not right. So this is kind of very interesting, and that's another thing. Some of the rudimentary mistakes that we faced with some of the junior BDMs and senior BDMs, and even with VPH about 2-3 years back, and with managers who used to call them, we faced was they would say, they would not do things in the proper manner. They wouldn't understand the things properly. They will not ask proper questions. They would never understand the purpose of anything. Then if RMO, BO and division CEO do not understand the purpose of something, then how is it good? They should understand the purpose. They should know why we are doing whatever we are doing, anything that we are doing, they should know the purpose. बहुत बार जूनियर बीडीएम्स को पता नहीं चला होता था कि हमने बात क्या बोली. मैंने वॉइस नोट छोड़े होते थे, उनको वॉइस नोट का पता ही नहीं होता था. वो वॉइस नोट को सीरियसली लेते नहीं थे.
अगर जूनियर बीडीएम ने ऐसे किया है, सीनियर बीडीएम ने ऐसे किया है, बीपीएच ने ऐसे किया, और अगर आरएमओ डिवीजन सीईओ भी ऐसे ही करें, उसको ध्यान ना दें, उनको पता ही ना कि वॉइस मेल आया है, और उसका ड्यूटी कोई ना करवाएं, तो कितना गलत है ना। तो दिस इज समथिंग दैट वी वांट डिवीजन सीईओज टू टेक वेरी सीरियसली, कि जो भी यहाँ पे वॉइस नोट छूटे हुए हैं वो उसको समझें और पढ़ें। हमारे बहुत सारे इस तरह के हिस्टोरिकल वॉइस नोट छूटे हुए हैं जो मैंने छोड़े हुए हैं, जो कि जिनके वो उनको ढूंढें, जी स्लैक में हैं, और वो हमारे क्लिकअप में भी पड़े हैं, ओल्ड क्लिकअप में भी पड़े हैं हमारे, और डिस्कॉर्ड में भी पड़े हैं, वो जाके उनको ढूंढें और उनको पता करें कि हमारे सारे ओल्ड, सारे जो H1H2, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बंदा H1H2 में है, तो आजकल सारे H1H2 में है, तो उसी एग्जांपल दे रहा हूँ। H1H2 के जो डिवीजन सीईओ हैं, अगर वो देखते हैं कि यार H1H2 के ये सारे ओल्ड दिए हुए हैं ये वॉइस नोट्स, उनको सुनना है। जो हमारे बीडीएम ज्वाइन करते हैं वो भी सुनते हैं, इनको बोलते रहते हैं, सुनते नहीं है, पर वो जूनियर होते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार पे सैलरी पे आते हैं, राइट। सीनियर बीडीएम हमारा 35K की सैलरी पे आता है। तो अगर हमारा जो डिवीजन सीईओ भी सुन नहीं रहा है, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो नहीं भी सुने तो उनके मान गए इन द पास्ट। हालांकि हमने उन्हीं को रखा जिन्होंने सुना और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ इतना परेशानी होती है हमें। अगर हमारे को डिवीजन सीईओ के साथ भी परेशानी हुई, और रेवेन्यू मॉडल ओनर के साथ भी परेशानी हुई, और हमें बिजनेस ओनर, यानी कि जो तीनों एक ही बात है, तीनों के साथ हमें इशू आया, तो फिर मजा क्या है बात का। तो ये एक बहुत बड़ी आस्क है कि आपने जो पुराने ऑडियोज हमारे ढूंढ ढूंढ के पता करके करने हैं, तो अपने आप ये टास्क क्रिएट करनी है, अपने लिए टास्क क्रिएट करनी है, कि हम लोग नहीं कह रहे, तभी आपने अपने आप करनी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप कहते हैं, मान लो हमारे से प्रॉब्लम आती थी कि ट्रेनर ने ट्रेनिंग की, और बीडीएम ने बोला, ट्रेनी ने बोला कि भाई मेरे को तो बताया नहीं ट्रेनर ने, मान लो 2 हफ्ते के बाद मैंने पूछा। अगर आप सीनियर बीडीएम जूनियर बीडीएम सारे बात कह रहे हैं, हम लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है कि आप बड़े ध्यान से हर चीज के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका पर्पस समझेंगे, और यू हैव टू अंडरस्टैंड ये आपकी कॉमन सेंस को, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस को अपील करना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस, हमने जो डिवीजन सीईओ हायर कर रहे हैं वो 30-32 से ऊपर है, तो उनको एक्सपीरियंस है, तो वो बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये। तो वो, अगर आपने भी वो क्वेश्चंस पूछे नहीं और हमारे बीडीएम से बातें नहीं पूछी, उसको ग्रिल नहीं किया, जो भी सर आपका ट्रेनर है उसे आपको ग्रिल नहीं किया, उससे बार बार आपने पूछा नहीं कि इसका रीजन क्या है, इसको पर्पस क्या है, ये क्यों करते हैं, वो चीज क्यों करते हैं, वो चीज क्यों करते हैं, उसका हर चीज का पर्पस नहीं पूछा, तो आप तो और आपने अपने माइंड में पिक्चर नहीं बनाई कि ये चीज है, तो फिर ये थोड़ी सी कमियों में आता है ना। तो शॉर्ट कमिंग्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो आपसे रह सकती है गलती से, और इनको आपने नहीं होने देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि बंदा काफी 2 या 3 हफ्ते बाद हमें जो भी ट्रेनिंग ले रहा है, वो बोलता है जी मुझे तो बताया नहीं ट्रेनर ने ये बात। भाई ट्रेनर ने बताना तभी जब आप पूछेंगे, तो आप पूछना, आपको तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपने पूछना। नोशन की एक्सेस, अच्छा फिर एक और चीज आ रही है, नोशन की एक्सेस लेना, स्लैक की एक्सेस लेना, और व्हाट्सएप के अंदर उसके ग्रुप में रहना हर समय। अगर मैं जूनियर के साथ भी इशू आ रहा है, सीनियर के साथ भी इशू आ रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ सीनियर को करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एक आस्क है कि आप समझिए कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर होना है। अगर आपका नंबर किसी कारण से डिसकंटिन्यू हो गया, तो आपको अपने पीछे पड़ के कहना है कि मुझे जरा रेलिवेंट ग्रुप में जल्दी से नए नंबर डालो, नहीं तो मेरे लोकल नंबर को डालो, ताकि आई कैन बी देयर। तो ये जो चीजें, इनकी ओनरशिप आपको खुद लेनी है, एंड सेम वे फॉर स्लैक एंड नोशन एंड एवरीथिंग, आपको उन चीज़ों की एक्सेस लेनी है। जो भी चीज़ें आजकल हैं, गूगल वर्कफोर्स है और MS टीम्स मीटिंग है, और आप प्रोफेशनली उस मीटिंग में क्विकली आ सके, और माइक आपका अच्छा काम करो, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्क्रीन शेयर कर पाना, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपने स्क्रीन शेयर करनी है अपनी अवेलेबल। अच्छा दूसरी चीज़, आपकी अगर अवेलेबल नहीं तो अपनी अवेलेबिलिटी ब्रेक वगैरह में डाल के जाना है, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को बता के जाना है, कोर ग्रुप्स में बता के जाना है, सारे ग्रुप्स में, ताकि पता चले सबको कि आप छुट्टी पे हो या आपने ब्रेक लिया। अगर आप पहले सो गए हो, जो किसी से जल्दी चले गए, तो आपने बता के जाना है। अगर आपने हमारे को अवेलेबिलिटी ब्रेक्स, हम लोग पहले तो डिडक्शन करते होते थे, उतना पीछे पड़ के हमने बहुत अनप्रोफेशनल लोगों को कंपनी से बाहर मतलब किया था। अगर वो जूनियर बीडीएम ऐसे कर रहे थे, फिर सीनियर बीडीएम भी ऐसे कर रहे थे, उसको अगर सीनियर मोस्ट लोग जो हम हायर कर रहे हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो हाउ इज दैट गुड। तो ये चीजें हमारी कैसी एक्सपेक्टेशन है, ये चाहे जो नहीं होना चाहिए, इज इट गुड। एक चीज़ और है, ये ऐसी कोई दबाव में बात आई थी, कोई स्पेशल, मतलब ऐसे कि सोच के नहीं बोल रहा, तो इसलिए थोड़ा सा अनकोऑर्डिनेट और अनआर्टिकुलेटेड रहेगा ये मैसेज। सो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 3-4 बाउंड्रीज हैं जो बंदे नहीं बना। अगर मैं नहीं बोला तो मैं दोबारा बताता हूँ कि जो RMO है वो कभी ये बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि जी मेरा तो वीकेंड पे कोई काम ही नहीं है, मैं तो वीकडेज में ही काम करूँगा, मैं तो जी 6 to 2 बात काम करते हैं हम लोग, तो 6 to 2 ही मैं भी काम करूँगा। हम बेसिकली 6 to 2 कैलिफोर्निया टाइम में काम करते हैं ना, 6 AM to 2 PM, तो मैं तो उसी में काम करूँगा। तो टाइम की बाउंड्री है, काम की बाउंड्री कोई नहीं बनाएगी, मेरे को तो काम का ही नहीं, मेरा तो बस ये काम है, मेरे को तो वो वाला काम करना ही नहीं है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होगी, राइट। और रोल की कोई बाउंड्री नहीं होगी, मैंने तो जी मैनेजमेंट नहीं करनी, मैंने तो वो नहीं करनी।
मीटिंग्स की कोई बाउंड्री बनाएगा कि मेरे को मेरी बात होती है, हम सिर्फ 3 घंटे मीटिंग करेंगे, बाकी समय बस कुछ मतलब मैं अपना काम करूँगा। ऐसी कोई बाउंड्रीज बनाने का कोई मीनिंग नहीं है मतलब आरएमओ के लिए। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। सेकंड, मैंने एक और चीज़ नई चीज़ देखी है कि आरएमओ इज़ द मेन कस्टोडियन ऑफ माई टाइम, यानी कि उसको मेरे टाइम का बड़े अच्छे से पता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो वो मेरे उस टाइम को बचाने के लिए हमेशा लगा रहता है। अब मेरे साथ एक आरएमओ की सिचुएशन है, वो कहता है जी मेरे को बस आपके मेरे से थोड़ी देर मेरे से ही बात कर लो। अगर मैं आपसे बात कर सकता होता है ईजिली तो फिर मैं बाकी सबसे भी करता। तो आई डोंट नो मतलब व्हाट कस्टोडियन मतलब मेरे काम को समझना, एक एक चीज़ को मतलब समझना, मेरी मीटिंग्स में टाइम से रहना, राइट, और मेक श्योर करना कि एवरीथिंग इज़ वैलिड प्रॉपर्ली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं फॉर एन आरएमओ मतलब मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ही इज़ अ फ्लेक्सिबल लेयर बिटवीन मी एंड द अनफ्लेक्सिबल पीपल। यानी कि जो बीडीएम है वो बीडीएम जो उनसे है या वीपीएच हैं वो कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि कभी वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है, कभी वीकेंड पे बात करनी है, कभी कुछ और करना है, कोई काम करना है। अगर उनको कोई कई बार वो काम नहीं उनको आता तो ना वो सीख पाते हैं। आरएमओ कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, यानी कि वो कोई वर्क की बाउंड्री बना सकती, मुझे काम नहीं आता तो मैं नहीं करूँगा, उसको सीखना ही सीखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि वीकेंड पे एंड इफ़ आरएमओ थिंक्स कि वीकेंड पे तो बहुत काम कराएंगे लगता है, तो ऐसा नहीं है। आप जाके बाकी आरएमओ से पूछो, बाकी डिवीजन हेड से पूछो कि भाई कितना काम कराया, कब तक जरूरत पड़ी है वीकेंड पे। वीकेंड्स पे तो काम करना हमारी फिलॉसफी का पार्ट ही नहीं है। गिवन दिस थिंग, कभी इतनी अर्जेंट चीज़ आती है तो उसके लिए हम तो कोशिश ये करते हैं कि वीकेंड पे ना ही हो। लेकिन तो एनीवे यू शुड टॉक टू अदर आरएमओ, मतलब बंदा शुड बी दिस स्मार्ट कि दूसरे आरएमओ से बात करके एक डेटा लेके आ सके। अब 22-year-old जेंटलमैन जो होते हैं वो बोलते हैं जी कि जी सर मैं ले आया डेटा, सर वो तो कह रहे हैं बुलाया था आपने 4 मिनट में तो वो भी नहीं आऊँगा। मतलब उन्होंने हर बात पे एक बचपना दिखाना है। 32-year-old जेंटलमैन से हमें बचपना नहीं नज़र आता, हमें उनसे बचपने की कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बचपना ना हो उनमें, ठीक है ना। चाहे जो कोई बचपनों वाली बात ना करें कि जी मतलब बाउंड्रीज भी बना ली हैं और बचपने से उस पूरे आर्गुमेंट को वो भी किया जा रहा है, मतलब वो सब नहीं। तो ये आरएमओ की सबसे स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है। एक मैच्योरिटी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म बड़ा हाई चाहिए। जो बात उन्होंने बोली है वो चाहिए। कोई लाइंग नहीं, कोई लाइंग नहीं, कोई मतलब वो नहीं, मतलब ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाए बाद में डाइजेस्ट करना कि बंदे ने हमें झूठ बोला। तो ये सारा आरएमओ के एथिक्स में आता है और ये कि वो नहीं कर सकते इस तरह की कोई चीज़ भी। कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई शर्किंग नहीं कर सकते, कोई काम में ढील नहीं छोड़ सकते, राइट। तो ये आरएमओ की जो लेयर है ये बड़े प्रोफेशनल, बहुत मोटिवेटेड, बहुत सिंसियर, बहुत टाइम मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स वाले, और हाई आईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। अगर उनको मैं कोई बात बताऊँ तो समझ आ जाए उनको 2 मिनट के अंदर अंदर। दिस इज़ द मेन लेयर ऑफ आरएमओ कि उनको समझ बड़ी जल्दी आती बात। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आरएमओ में, ठीक है ना। थोड़ी सी मैंने चीज़ें रिकैप भी कर दी दोबारा से, थैंक यू। क्या हुआ था कि सम टाइम और 4-5 ईयर्स पुरानी बात है, हमने 4-5 लोगों को हायर किया तो उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली। उस यूनियन के जो रूल्स थे कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई प्रॉफिट लाइन से ना लें, हमें फिर भी रखना पड़ेगा, एक को निकालेंगे 4 जाएंगे। ये यूनियन के रूल्स बनाए उन्होंने अपने कि 2 को निकाल, अगर किसी को गलत बोला, किसी को पूछा, बाकी 4 जवाब देंगे साथ में। तो ये यूनियन बाजी जो है ये हम किसी भी एक आरएमओ से एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब किसी भी, हम वैसे तो किसी बीडीएम से किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ये यूनियन बाजी जो उनसी है मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मतलब राइट, ठीक है ना। जो आरएमओ है उनका मेरे चैनल्स पे जी टीम और जी स्लैक चैनल जो है मेरा 2 चैनल्स है मेनली, और कोर मेरा एक ग्रुप्स रहते हैं, कोर चैनल भी है। इनके ऊपर उनकी पूरी नज़र रहती है और पीएम से पूरी नज़र रहती है। उनका जो रिस्पॉन्स रेट है बड़ा हाई होना चाहिए। वो ये नहीं हो सकता उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये मैसेज आया। उनका दे शुड बी हैविंग गुड हैंडल ऑन द कम्युनिकेशन टूल्स।